Hello everyone, I am Sujaval Jagga. I have secured All India rank 84 in UPSC Civil Services exam 2021. Before that, I had secured rank 7 in Punjab Civil Services exam 2020, which means during this attempt I was already working with the government of Punjab. I am a qualified chartered accountant of May 2018 batch, and after that I had started working with the corporate sector both in India and then abroad in Tokyo, Japan. And then I took a decision, came back to India and then started preparing for civil services exam in June 2019. Since my optional was commerce and accountancy, and in my opinion, I believe that there is a huge bottleneck in this option in terms of availability of solutions to the previous year questions. So I take this opportunity to share my opinion, structures, thought process, or answer writing technique of the paper 2 of commerce and accountancy of 2022 attempt. Basis our experience, we will see जितना ज़्यादा से ज़्यादा we can cover the previous years. We'll try कि for the forthcoming attempts, students do not face such kind of problem. What I used to do was कि मैंने syllabus mapping की हुई थी. So the syllabus given by UPSC, I modified it in some terms, उनको simplistic manner में लिख लिया, and then उसी पे 1 pager notes बना लिए, and then जो अभी 2022 में पेपर आया है, I have shared that PDF. The link is in description. Also, I have shared that on my Telegram channel. तो जैसे भी आपको feasible हो, you may please download it and have a look. तो you will realize कि out of 400 marks का paper, more than 300 marks paper is directly and plainly from the syllabus. Directly syllabus का term उठाइए, उसका simple उन्होंने question पूछ लिया. So I think if you use the syllabus as like your GPS, the chances of going astray or the chances of being ineffective or inefficient will be reduced. And बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगी and you will score well in the exam. So let's get started. तो पहले बात करते हैं 1A. The question is MBO is a mixed blessing. Elucidate the statement. MBO typically verbatim आपके syllabus में दिया हुआ है. Simple question. We'll give an intro of Peter Drucker. MBO ये होता है. Then we can make a circle कि setting corporate goals, individual goals, use their set measures, continuous monitoring, और वो आपका एक छोटा सा definition. Then you make that flow chart और circle types. फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है mixed blessing means उसके benefits लिखो, limitations लिखो. Benefits are also very simple, helps integration of IG and OG, authority control में help करता है, measurable goals होते हैं, employees are motivated. कोई motivation की theory let's say लोग की है वो goal setting theory कि measurable goals होते हैं, a person is motivated. 3-4 वो benefit लिखो. Then 3-4 limitations like एडवर्ड डेमिंग यूज्ड टू से कि MBO से क्या होता है कि देयर माइट बी ए गोल डिस्टोर्शन कि पीपल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मेजरेबल एस्पेक्ट्स और द पेपर वर्क इंक्रीजेज और ह्यूज नॉलेज प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. देन आप यहाँ पे मैकग्रेगर की थ्योरी X यूज़ कर सकते हो दैट पीपल आर नॉट सो मोटिवेटेड टू अचीव हायर गोल्स. तो उनको बस जो कहा जाए वो उतना ही करना चाहते हैं. तो MBO इज़ नॉट फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. तो वो 3-4 लिमिटेशन लिखी. उसके बाद यू में इफ़ यू हैव द स्पेस तो 1-2 आप वे फॉरवर्ड लिखो. नहीं है स्पेस तो कंक्लूजन को ही आप फ्यूचरिस्टिक बनाओ दैट विद यूजिंग गुड लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, रिटन डाउन पॉलिसीज, MBO कैन बी अ ह्यूज सक्सेस, राइट. व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं इसको किसी न किसी कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, सिंस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, तो आई वुड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ PwC. आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम PwC कि PwC में क्या होता था, एन एम्प्लॉई यूज टू डिक्लेयर हिज ओन गोल्स. टॉप डाउन गोल सेटिंग नहीं होती थी. तो हम गोल डिक्लेयर करते थे, मैनेजर यूज टू अप्रूव इट कि ठीक है यही गोल्स हैं. देन आफ्टर एन ईयर दोज गोल्स यूज टू बी द यार्डस्टिक फॉर आवर परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो आप वैसे वाला कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से भी कंक्लूड कर सकते हो कि दिस सच टाइप ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी अप्लाइड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. देन अगेन मैट्रिक स्ट्रक्चर ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड. मैट्रिक स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सिलेबस में दिया हुआ है और मैट्रिक स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यूनिटी ऑफ कमांड की है. तो आप मैट्रिक स्ट्रक्चर की इसमें 10 मार्क्स का डेफिनेशन लिखो. मैट्रिक स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनेगा वो ग्रिड वाला, ठीक है. एंड देन यू विल से हाउ इट ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड. यू मे राइट one liner definition of unity of command given by Henry Fayol that an individual should receive orders from only one senior and no dual subordination. How it breaks ki what and when aspects are determined by the project manager, how aspects determined by the line manager, and इस वजह से unity of command break होती है.
तो बट सिंस ये 10 मार्क्स का है तो आपको इसको एक्सपेंड करना है कि जब रिक्रूटमेंट होती है तब भी हायरिंग अपना लाइन मैनेजर ज़्यादा देखता है, बट यूज़ उसे एम्प्लॉई को जो काम करवाना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करवाता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम प्रोजेक्ट मैनेजर ने करवाया, रेटिंग उसकी लाइन मैनेजर से होगी। एंड देन सिमिलरली 2-3 पॉइंट्स आप और क्रिएट कर सकते हो। एंड देन द 20% और 25% ऑफ द सेकेंड पेज कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड दैट हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। And again, अब PwC के example, rather than writing the word PwC, I might write EY, KPMG, Deloitte, whatever, कि वहाँ पे क्या होता है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स होते हैं, रिटन डाउन पॉलिसीज होती हैं, एंड देन द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो हैज़ अ से इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉई। तो दैट इज हाउ मैट्रिक स्ट्रक्चर की यूनिटी ऑफ कमांड की लिमिटेशन कैन बी ब्रोकन, राइट। देन क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स। क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली मतलब बहुत प्लस एंड माइनस। पर्सनैलिटी पर GW LPOT की डेफिनेशन है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज इंडिविजुअल सिस्टम्स विच डिटरमिन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, वो सब लिखा। देन पर्सनैलिटी में व्हाट आई यूज टू डू वाज कि एक डायग्राम बनाना है पर्सनैलिटी का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आइसबर्ग वाला वो डायग्राम है ना, सिगमंड फ्राइड का, आई थिंक, इड सुपर ईगो। तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, छोटा सा डायग्राम बनाया फटाफट। देन क्रिटिकली डिस्कस, तो 4-5 बेनिफिट, 4-5 लिमिटेशन, एंड देन अगेन कंक्लूजन में कॉर्पोरेट एग्जांपल लिया कि यूज़ ऑफ 360 डिग्री फीडबैक एंड योगा, मेडिटेशन, माइंडेड प्रोग्राम है एक सोनी का, वो उससे दीज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने हैं वो आपके एग्जैक्टली पर्सनैलिटी ट्रेट्स का जो चैप्टर है, जो आपके नोट्स होंगे उसी से कीवर्ड्स उठाओ। आप कोर सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करो, सेल्फ एस्टीम की बात करो, डार्क ट्राइड होता है मेकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म, साइकोपैथ। देन ओशियन है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, उसके बारे में कुछ बात कर लो। देन यू माइट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर बाय डेनिस ऑर्गन। तो वो 4-5 पॉइंट लिखो, प्लस में 4-5 पॉइंट, माइनस में थ्योरी टाइप ए टाइप बी एम्प्लॉई की बात कर सकते हो, एंड देन यूज देम एंड देन क्लोज द क्वेश्चन यूजिंग अ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, और राइट मैन एट राइट जॉब वगैरह कुछ भी ऐसे कीवर्ड यूज़ करके उसे आप क्लोज कर दो। देन 1D एंड 1E लार्जली काफ़ी हद तक सिस्टम्स अप्रोच पे इन्होंने पूछ लिया है। सिस्टम्स अप्रोच अगेन डिटो वर्बैटिम क्वेश्चन अपने सिलेबस में दिया हुआ है। सिस्टम्स अप्रोच इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन की बात करिए तो सिस्टम्स अप्रोच की डेफिनेशन लिखो और एक फ्लो चार्ट बना दो। प्री क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज, उसके बाद बीच में बर्नार्ड और वो भी आते हैं, सोशल सिस्टम और हाउथन एक्सपेरिमेंट्स बाय एल्टन मायो। देन सिस्टम्स अप्रोच है, देन कंटीजेंसी अप्रोच है। सिस्टम्स अप्रोच के फीचर्स लिखो और एक यहाँ पे अगेन एक डायग्राम बन सकता है, इनपुट और फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आउटपुट, प्रोसेसिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अब 4-5 फीचर्स लिखो, 4-5 बेनिफिट्स, एंड अगर स्पेस बचता है तो 2-3 लिमिटेशन, नहीं तो एक लाइन में ही लिमिटेशन यू में राइट। एंड देन इन द कंक्लूजन यू कैन राइट दैट सिस्टम्स अप्रोच इज एब्स्ट्रैक्ट वाइल कंटीजेंसी अप्रोच गिव्स meaning to it or makes it realistic, and or you may also write that contingency approach is an offshoot of systems approach because they have said that in the context of evolution। तो अगर आप conclude इससे और better theory से करोगे तो I think ये आपका पूरी evolution की story complete होती है। 1E again main systems of organization effectiveness। systems approach में ही हम different types of subsystems पढ़ते हैं by different thinkers, Cargonian, Obses, Cast and Rosenweig, Emery and Trist। तो उनमें से कोई भी 2-3 थिंक करके 4-5 सिस्टम उठाओ, एक डायग्राम बनाओ, 5-6 सिस्टम्स को एक्सप्लेन करके। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस अगेन अपने बिल्कुल सिलेबस में है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन, देन 6-7 सिस्टम्स लिखे। देन इन अ स्मॉल पैरा ऑफ 20-30 वर्ड्स यू मस्ट राइट कि वी हैव डिसएग्रीमेंट और कॉन्करेंस ओवर द नंबर ऑफ सब सिस्टम्स दैट शुड बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और द इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ द और द हाउ टू मैनेज डिफरेंट सब सिस्टम्स। We can say there are 3 types of interdependencies, pooled, reciprocal, sequential। तो वो भी आप कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद यूजिंग द वेल थॉट आउट प्लान्स, रिटर्न पॉलिसीज, गुड लीडरशिप, अगेन वही क्लासिक चीज़ें लिख के आप लिख सकते हो कि सिस्टम्स अप्रोच कैन बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन 2 राइट, अभी शॉर्ट नोट्स अपने पूरे हो गए हैं, अब 2A की बात करते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है टू माय ओपिनियन, सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। एंड सिंस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट तो 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ में भी हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में पढ़ते थे। सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, 20 मार्क्स का है ये, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम बन जाएगा,
सेंट्रलाइजेशन में आप क्या बनाओगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे, आसपास छोटे छोटे सर्कल, एंड यू विल शो कि एरोज एमिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर टू से कि सेंटर पे सारी पावर कंसंट्रेटेड एंड दैट इज बीइंग गोइंग फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर। डिसेंट्रलाइजेशन में रिलेटिवली इक्वल साइज के सर्कल्स आप बना दोगे टू शो कि पावर हैज़ बीन स्कैटर्ड। आपने वो लिखा, उसके बाद इट सेज इट कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन, नन इज गुड और बैड, क्रिटिकली इवेल्युएट मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिखने हैं। तो ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ फर्स्ट पेज पे आपकी दो डेफिनेशंस, दो डायग्राम आ जाएंगे। उसके बाद आपको सेंट्रलाइजेशन, नन इज गुड और बैड, पहले इसको टेकअप कर लेते हैं। नन इज गुड और बैड मतलब ना ही दोनों प्योर अच्छे हैं ना ही दोनों प्योर बुरे हैं। तो मैंने टेबल बनाऊंगा एक, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, 3-4 मेरिट्स, 3-4 डीमेरिट्स, देन मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको इन्वर्स करके आप मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं, जो मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको रिवर्स करके आप डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं, या इससे आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू थर्ड पेज ऑफ आवर आंसर शीट। 20 मार्क्स में 3 पेज ही मिलते हैं अपने को, अनलाइक द जीएस जहाँ 15 मार्क्स के लिए 3 पेज मिलते हैं। तो दैट सेव्स योर टाइम एंड हेल्प्स यू राइट द क्वालिटी कंटेंट। तो इसीलिए ऑप्शनल में क्वालिटी बिकम्स पैरामाउंट, बिकॉज पेजेस कम है, मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको क्वालिटी पे बहुत फोकस करना है, सिर्फ क्वांटिटी से नहीं होगा। थर्ड पेज पे जो हमने छोड़ा था, कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन। कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन अ मिरियाड ऑफ फैक्टर्स। तो अपने को वो फैक्टर्स लिखने हैं, 7-8 फैक्टर्स लिख देंगे हम। सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर प्लांट है तो बहुत सेंट्रलाइज्ड होगा, स्टार्टअप है बहुत डिसेंट्रलाइज्ड होगा, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ लीडरशिप, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारे 6-7 फैक्टर्स आप लिख के तो अपने सारी डायमेंशंस एड्रेस कर दी एंड देन वी हैव टू गिव अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड। फिर 2-3 आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि कैसे आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज को आप बैलेंस करो। तो मैरी पाकर फॉलेट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंकर्स हु सेज दैट लॉ ऑफ सिचुएशन शुड प्रिवेल, कि सिचुएशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से काम होना चाहिए। और मे बी आप बर्नार्ड का भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते थे वो, कि अथॉरिटी डज नॉट लाई विद द पोजीशन विच गिव्स द ऑर्डर, इट रादर इट लाइज विद द पोजीशन विच रिसीव्स द ऑर्डर। तो आप उन दोनों तीनों थिंकर्स की भी बात हो जाएगी, एक डाइवर्सिटी भी आ जाएगी और एक आप उसको कंक्लूड भी हो जाएगा। कंक्लूजन में फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने पता नहीं किसी बुक से ही ढूंढा था। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड टॉम पीटर्स हु सेज दैट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। तो बस वन लाइनर में आप कंक्लूड करो, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, तो मेरे को इस पर काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड है। कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन 2B पे आ गई, कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन इन परसेप्शन, सजेशंस फ्रॉम इंप्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज। 10+10 का अपने 2 पार्ट्स हो गए। देन अगेन परसेप्शन की आप डेफिनेशन लिखोगे, दैट द प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू द स्टिमुलस और द एनवायरनमेंट। फिर आप इसमें वैल्यू एड क्या कर सकते, परसेप्शन का ना एक फ्लो चार्ट बना दो, स्टिमुलस, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, आउटपुट, आर बिहेवियर। तो छोटा सा फ्लो चार्ट डेफिनेशन के बाद बन जाएगा। इससे आपका एक आंसर भी लाइवली हो जाएगा और आपको वो चीज़ आती है, जिसने भी परसेप्शन के बारे में पढ़ा है वो फ्लो चार्ट तो अपने को आता ही होता है। 20 मार्क्स का है तो वी ऑलरेडी हैव एडिक्वेट स्पेस टू मेक दैट। वो प्रोसेस बनाया। देन कोजेज ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ परसेप्शन, तो इसमें आप एरर्स की बात कर सकते हैं, हिंडसाइट बायस, स्टीरियोटाइप्स, सेंट्रल टेंडेंसी, और मे बी रिस्क एवर्जन बायस, और हेलो एरर, और सिलेक्टिव परसेप्शन। और देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्प्रेशन मैनेजमेंट बाय द पर्सन, जिसमें वी से फ्लैटरी और बिना बात के किसी पे अपना ब्लेम अपने पे लेना या अपनी ही सेल्फ प्रमोशन करना, ऑल दोज थिंग्स जो हमने पावर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ से भी यहाँ पे हम ला सकते हैं चीज़ें। देन वी कैन राइट अबाउट फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, कि फिगर किसी के लिए, ग्राउंड किसी के लिए, तो परसेप्चुअल एरर्स आर बाउंड टू हैपन, डिस्टॉर्शन इज बाउंड टू हैपन। फिर अपन बात करें सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग। वन मोर थिंग, 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता था ना, आई ऑलवेज यूज टू मेक कॉन्शियस एफर्ट कि मैं ना एक छोटा सा डब्बा क्रिएट करूँ उसमें, एंड आई राइट कॉर्पोरेट एग्जाम्पल और केस स्टडी टाइप्स और बेस्ट प्रैक्टिस टाइप्स लाइक अबव सेड एग्जाम्पल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें ना मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल अपना जरूर लिखता था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन अ वेरी एक्सक्विसिट मैनर। 246A में अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टेट और यूनियन को, बट एमरजेंसी होगी तो सब कुछ सेंटर के पास चला जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जिसमें हम बिल्कुल स्टेटमेंट में फिट बैठता है कि इट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन, नन इज़ गुड और नन इज़ बैड।
तो वो डब्बा बना के आप लिख सकते हो। इसमें हम इम्प्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी आप कोई भी एक डब्बा बना के जस्ट राइट एनी रैंडम थिंग, आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक एनी ऑर्गेनाइजेशंस नेम। आई न्यू अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा विच यूज टू ऑर्गेनाइज अ खुला मंच इनिशिएटिव वेयर द टॉप लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, ऑनगोइंग पॉलिसीज वो सब शेयर करते थे, ताकि किसी में कोई परसेप्चुअल एरर ना आए, कोई पॉलिटिक्स क्रिएट ना हो। तो वो एग्जाम्पल यहाँ भी बड़ा एप्टली यूज़ हो सकता है। जब भी एग्जामिनर एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल पढ़ेगा, ही फील्स लाइक कि ये बच्चे ने एक स्पेशल एफर्ट मारा है, एक काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल और रो चीज़ें नहीं लिख रहा है। टू माई माइंड आई थिंक दैट विल हेल्प एंड दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये चीज़ अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ 15-20 एग्जाम्पल ही अपने अलग से निकाल लो और उसी को हर एक में यूज़ करी जाओ। हर टॉपिक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल ट्राई कि जो मेरे पास एग्जाम्पल पड़े थे उसे कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक तरीके से लिख के मैं आपको आई हैव माई ओन टेलीग्राम चैनल, वहाँ शेयर कर दूँ, या मे बी गोइंग फॉरवर्ड DKT पे आप एक और वीडियो कर लें और वहाँ पे वो शेयर कर दें। देन ब्रीफली रिव्यू हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट का अगेन क्लासिकल हमारा एक पूरा चैप्टर ही आता है और टर्मिनोलॉजी मैंशनड है हमारे सिलेबस में। और कॉन्फ्लिक्ट में आप पढ़ते ही हैं क्लासिकल ये व्यू था, फिर ह्यूमन रिलेशंस का क्या व्यू था, एंड देन मॉडर्न व्यू इज़ कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट रियली डिसरप्टिव। तो फिर इसमें एक अपना वो चार्ट सा बनता है लाइक यू नो बेल कर्व टाइप्स, कि लो कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी इंक्रीज, मीडियम कॉन्फ्लिक्ट है तो मेंटेन, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी रिड्यूस्ड, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज हाईएस्ट व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज एट अ मॉडरेट लेवल। तो आप हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन, और कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन लिखो, एमिटाई एड्जियोनी नहीं किसी और की है, लाइकट की है, कॉन्फ्लिक्ट इज द डिटरमिन्ड for personal objectives which you've achieved leads to precludes to the non-achievement of the preferred objectives of other person। वो लिखो। कॉन्फ्लिक्ट एक फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो, latent perceived conflict, latent perceived felt manifested conflict aftermath, then you may write about the 7-8 benefits of conflict, and then मैरी पाकर फॉलेट का नाम तो बहुत ज़रूर लिखना है इसमें अपने को। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर, एंड शी यूज टू से कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑल पॉलिशिंग इज डन थ्रू फ्रिक्शन, कि मतलब थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी तभी आपकी इनोवेशन, तभी आपका न्यू वे ऑफ थिंकिंग आएगा और ग्रुप थिंक को आप ओवरकम कर पाओगे। एंड देन शी यूज टू से कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेशन। तो उनका एक ट्रायंगल बनता है, फॉलेट ट्रायंगल जिसे बोलते थे, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन, डोमिनेशन। ना कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ना डोमिनेशन होनी चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेशन होनी चाहिए। उससे अगर आप कंक्लूड करोगे, आई थिंक कम से कम 1 नंबर अपने को एक्स्ट्रा मिल जाना है, और वो डायग्राम भी अपना बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन अपना इससे हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, explain with the help of expectancy theory why a lot of workers are not motivated and do only minimum necessary। आई थिंक 20 नंबर में 3 पेजेस में सिर्फ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अपने को खींच के कर सकते हैं अगर अपने को बहुत फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से नहीं आता। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर विरूम एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस की वो 3 चीज़ों की बात करता है। थ्योरी के बारे में आधा पेज, 75% ऑफ फर्स्ट पेज आप लो, थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करो, एंड देन 3 एलिमेंट्स को लेके एक्सपेक्टेंसी, उसका मतलब लिखो कि लाइकलीहुड दैट माय एफर्ट्स विल लीड टू डिजायर्ड परफॉर्मेंस, उसका मीनिंग लिखो। देन शो कि जब हम अपनी एफर्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इससे हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी कि हमें जॉब एम्बिग्विटी है, अथॉरिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉय नहीं मान रहे हैं, अच्छा कल्चर नहीं है, वो सब के कारण एक्सपेक्टेंसी में वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करो। एंड देन यू मे राइट एन एग्जाम्पल, एंड देन 1 या 1.5 लाइन में सोल्यूशन कि प्रॉपर जॉब एनालिसिस हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, जॉब स्पेसिफिकेशन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेक्शन हो, HRM के भी आप यहाँ पे कॉम्पोनेंट सारे यूज़ कर लेने हैं। तो उससे एक्सपेक्टेंसी ठीक हो सकती है, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगी। देन सिमिलरली एक्सपेक्टेंसी के बाद इंस्ट्रूमेंटैलिटी के बाद वैलेंस, इन तीनों को आप 60% में 60% ऑफ अ पेज में एक्सप्लेन करोगे। 60% में आपका थ्योरी ले ली थी, तो 60% तो 240% हो गया टोटल। अपनी लास्ट पेज का 60% बचता है बस, उसमें आप लिखो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में, जो शायद पोर्टर एंड लॉलर के बारे में थी, उसने भी 2-3 लाइनें उस पर लिखो। एंड देन हाउ टू मे बी ए कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, जैसे आप डब्बे की बात करते थे वो आप ले सकते हो, कोई सोल्यूशन देना चाहते हो अलग से वो आप दे सकते हो, नहीं तो बाकी चीज़ों को स्ट्रेच करके क्वेश्चन क्लोज कर दो। अपने को हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर नहीं लिखने हैं, पेपर भी पूरा हो, 50-60-70% बहुत ज़्यादा क्वालिटी का हो, बाकी सब एवरेज हो, अपना चलेगा। तो टू माई माइंड, मतलब हो सकता है मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसमें कम लिखो, तो अपना इसको चला सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने फर्स्ट मेंस लिखा था तो मैं ऐसे बहुत टाइम ख़राब करता था कि जो नहीं आता तो उसी पे ही एफर्ट मारे जा रहा हूँ कि और निकालने का, इतने में जो आते हैं उसके लिए ही टाइम नहीं बचता। टू बी कल्चर, डायरेक्ट अपने सिलेबस में कल्चर लिखा हुआ है और ये डेफिनेशन भी बहुत क्लासिकल डेफिनेशन है कल्चर की। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं अपने को कल्चर के, और इन्होंने डिवीजन भी दी हुई है 6 मार्क प्लस 7 मार्क प्लस 7 मार्क, तो मतलब 3 पेज हैं अपने, एक एक डायमेंशन एक एक पेज पे आएगी। पहले पेज पे अपने को कल्चर की डेफिनेशन लिखेंगे, और ना कल्चर जब भी आए, ये तो मतलब यू टेक इट एज योर थंब रूल, तो जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिखे एक वो आइसबर्ग जरूर बना देना। आइसबर्ग वाला डायग्राम होता है अपना एक कल्चर वाला, एजम्पशंस, बिलीव्स, नॉर्म्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, सॉल्यूशंस। तो एजम्पशंस, नॉर्म्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ये अपने इनविजिबल कंपोनेंट बनेगा, और सिर्फ जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो ऐसे वाला आइसबर्ग बना सकते हो आप, छोटा सा पेंसिल से और डब्बा बना दो। देन एक्सप्लेन दिस 4-5 थिंग्स, क्योंकि ये 6 नंबर का है, बिलीव्स, एजम्पशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, इसको एक एक में एक्सप्लेन किया और एक को एग्जाम्पल दे दी। अगर मान लो आपको बिलीफ की बात करनी है तो आर्मी की बात करो, और वैल्यूज़ की बात करनी है तो सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, GS4 में अपन नोलन कमेटी पढ़ते हैं, 1-2 वैल्यूज़ वहाँ से चिपका दो। नॉर्म्स की बात करते हैं तो मे बी यू कैन टॉक ऑफ आर सोसाइटी से कुछ उठा लो कि एक नॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बिग फोर्स में क्या होता था, ईयर एंड ब्रेक होती थी, 10 दिन की ब्रेक मिलनी है, या मे बी ओपन डेस्क पॉलिसी होती है, CEO भी आपका डेस्क पे बैठा है, तो मतलब ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू मे यूज़। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट, 5-6 पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी 5-6 चीज़ें आप लिखो, उसमें 5-6 पॉइंट्स, एथनोसेंट्रिसिज्म, रिचुअलिज्म, स्टीरियोटाइप्स, फोकस ऑन एंड्स रादर देन मीन्स, और आप मर्जर इससे रुक जाते हैं। तो बाई कल्चरल ऑडिट्स होते हैं, ये भी अपने एक टॉपिक है। तो वॉलमार्ट और एयरटेल का मर्जर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही रुका था। एंड देन कल्चर होते हैं तो लॉ सूट्स भी आ सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इन्फोसिस के अगेंस्ट लॉ सूट हुआ है ऑफ ड्यू टू इट्स एलिजेड बायसनेस, ये US में हुआ है। तो ऐसे की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पूरा। देन फ्रेडियन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट यहाँ अपने को पता लगता है प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू। 2016 में बिल्कुल डिटो 10 नंबर का शॉर्ट नोट आया फ्रीडियन स्टेजेस। तो अगर किसी ने वो पढ़ी है, उसका सोल्यूशन निकाला है, तो यहाँ काम सेट हो जाएगा। 90% बच्चों को नहीं आता होगा, जिसको आता होगा ही विल पास थ्रू। तो सिगमंड फ्राइड के आप 2-3 लाइन में थ्योरी लिखो। सिगमंड फ्राइड सेड की अनकॉन्शियस चीज़ों से पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है रादर देन जस्ट कॉन्शियस। देन सुपर ईगो, इड, ईगो, वो अगेन आइसबर्ग वाला डायग्राम। देन 5 स्टेजेस, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, और एक और है जेनाइटल। 5 स्टेजेस 2-2 लाइन में लिखो। एंड देन प्लीज राइट 2 to 3 लाइन्स में इसकी लिमिटेशन ऑल्सो। इट इज सेड दैट फ्राइड फोकस टू मच ऑन द मेल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या कुछ स्टीरियोटाइप्स भी थे उस केस में, वो 2-3 पॉइंट लिखो। एंड देन कंक्लूड विद द अदर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये तो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी थी, उसके बाद पर्सनैलिटी थ्योरीज आई, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आई, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी, अपना रियासेक मॉडल है, सिचुएशन स्ट्रेंथ थ्योरी है, ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी है। देन क्रिस आर्गरीज बोलते हैं कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, तो उनसे बात करो कि सिर्फ अपने ब्रेन से नहीं, सिर्फ अपनी सोच से नहीं, अपनी सिचुएशन से भी डिटरमिन होती है कि हाउ आर पर्सनैलिटीज। 1-2 लाइन में यू मे राइट दैट, अगर अपने को स्पेस और टाइम बचता है तो। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो 3 क्वेश्चन हमने OTOB का डिस्कस कर लिए हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं HRM और IR सेगमेंट से डिस्कस करूँगा, सेक्शन B से। HRM IR में बहुत ज़्यादा जेनरिक क्वेश्चन थे, और एक जनरल फ्रेमवर्क आई वुड सजेस्ट कि अगर आप HRM और IR में डेवलप कर लेते हो, दैट हेल्प्स यू गेट थ्रू। बहुत ज़्यादा एफर्ट मैं OTOB में मारता था, HRM IR में बहुत कम मारता था। IR में रादर मैंने बस एक ही पेज प्रिपेयर किया हुआ था, मतलब 7-8 पॉइंट्स एम्प्लॉय के, मतलब IR का कोई भी क्वेश्चन आए तो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉई, देन एम्प्लॉयर, देन गवर्नमेंट, इन 3 के पर्सपेक्टिव से इन 3 में ज़रूर डिवाइड करना है आपने हर क्वेश्चन को। इससे अपने को मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं, और क्वेश्चन भी जल्दी पूरा होता है। और HRM में अपना प्रोसेस को याद रखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, और उसके बाद आपका R से रिटेनिंग। तो जब भी कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो बस इन पैरामीटर्स पे सोचो, सबसे एक पॉइंट लिखता जाओ। आई विल शो यू हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस। पहला तो 5A, ट्रांसफर और प्रमोशन डिमोशन का डिफरेंस, वेरी इजी। पर्पस ऑफ रिजोर्टिंग टू ट्रांसफर, आई थिंक दिट इज अ प्लेन सिंपल क्वेश्चन। अगेन 4 इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री फीडबैक, वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 360 डिग्री फीडबैक
वर्बैटिम अलग से अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर इसके बाद भी अपने पास अगर 1 पेजर इसका प्रिपेयर्ड नहीं है और अपने को ये 10 नंबर का आंसर अगर आप 6 मिनट में नहीं लिख पा रहे, सो आई थिंक वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि वी है ना, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं देयर इज़ अ गोल डिस्प्लेसमेंट, कि जो करना है वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना मतलब द कोचिंग मटेरियल और हम जो भी मटेरियल किसी का भी पढ़ते हैं, दैट इज़ अ मीन्स टू दिस एग्जाम और अ मीन्स टू द सिलेबस, नॉट द एंड्स इन इटसेल्फ। आप उसी को एंड्स बना लेते हैं और अपने सिलेबस को भूल जाते हैं। तो दैट वुड बी माई रिक्वेस्ट टू यू कि अपने सिलेबस की तो एक टर्म पहले करो, उसके बाद बाकी चीज़ों को हाथ लगाओ। एक्सेसिव टर्नओवर इज नीदर इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर नॉर इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन लिखो, उसका एक एग्जांपल भी दे दो कि लेट्स से एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 1000 एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज लेफ्ट ड्यूरिंग एन ईयर, देन मीन्स इट हैज़ एन लेबर टर्नओवर ऑफ 10%। नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, भाई बार बार हायर करने पड़ेंगे, खर्चा होगा, ट्रेन करना पड़ेगा, पोचिंग हो जाएगी, ट्रेड सीक्रेट्स बाहर जाएंगे, बिग 4 की कोई एग्जांपल लिख दो, ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होती है। इन नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, स्टेबिलिटी इंपैक्टेड है, रिलायबिलिटी इंपैक्टेड है, ही माइट फेस अ कल्चरल बायस, है ना, नई जगह जाएगा, सेटल नहीं हो सकता, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, all those things get impacted, and then you may write 1 or 2 solution on how to ensure that labor turnover is managed at a decent level. Then essential conditions for congenial industrial relations, exactly अपने जो 8 टॉपिक हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, उससे एक 2 पॉइंट लिखो, द क्वेश्चन इज सॉर्टेड। एक आप लिखोगे ट्रेड डिस्प्यूट जब भी हो तो फिर रादर देन गोइंग टू आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन गो टू कंसिलिएशन, हैव अ गुड पीस कमिटीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होनी चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, रिकग्निशन टू ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए। एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से ये हो गया, एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, अच्छा काम करो, देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन, दे शुड गो फॉर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर शुड बी नो पॉलिटिसाइजेशन, देयर शुड बी रैंक एंड फाइल लीडरशिप, और गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि वो जो 1-2 कन्वेंशंस हैं हमारी वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की, वो हमने साइन नहीं करी, वो साइन वाइन कर लो। 43A है वर्कर्स पार्टिस, अगेन WPM का ही है, उसका एक्ट बना दो। तो बस ऐसी चीज़ें लिख के इसको क्लोज कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर मैनेजर्स, अगेन प्लेन सिंपल क्वेश्चन, उसके गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉई के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी मैनेजमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट 3-4 पॉइंट्स एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दिस। आई नो, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ कि यू आर सॉर्टेड फॉर दिस माइट लुक ईजी, बट टू माई माइंड अगर आप बार बार इफ वी कीप प्रैक्टिसिंग इट, eventually we will develop that kind of comfort on this. और HRM I again request कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था इस पर, OTOB पे बहुत किया था, एंड OTOB वाले बहुत पॉइंट्स यहाँ यूज़ हो जाते हैं। हेयर यू जस्ट नीड टू बी रेडी फॉर 10 मार्कर्स, और जितना कंटेंट करो 20 में अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। एंड आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को 3 क्वेश्चन OTOB से ही अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी से ओनली 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, कुछ भी हो जाए। मैं OTOB इतना अच्छे से प्रिपेयर करता था बिकॉज HRM में देयर इज़ नो लिमिट। OTOB का बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वैल्यू एड मटेरियल ढूंढना इज़ रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट। 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं, 7A, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब प्योर खींचने वाली बात है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सिग्निफिकेंस। आप उसे 1 पेज में लिखो, 2 में लिखो, 3 में लिखो, 1-1.5 पेज तक तो अपने पास क्वालिटी कंटेंट होगा, बाकी खींचने वाली बात है। सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज़, आधे पेज में पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन लिखो, एक आधी एग्जाम्पल बनाओ, उसके कंपोनेंट्स लिखो कि जॉब ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस है, फिर अपना डिमांड वो है एनालिसिस है, सप्लाई हम करते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनते हैं, उसके बारे में लिखो, एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। फिर उसके बेनिफिट लिखने हैं, फिर रिक्रूटमेंट के लिए क्या बेनिफिट होंगे, सिलेक्शन में क्या बेनिफिट होंगे, ओरिएंटेशन में क्या बेनिफिट होंगे, अप्रेजल के टाइम क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है, ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है। ऑल दोज थिंग्स यू कैन राइट एंड गेट अवे विद दिस क्वेश्चन। अगेन मेरा HRM IR बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ये इंपॉर्टेंस एंड देन मेथड्स पूछ रहा है, हाउ टू इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, एक आधा कुछ आप करके दिखा दो कि टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और एक फ्लो चार्ट बना दो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, वो वाला एक छोटा सा फ्लो चार्ट बन जाएगा। देन ऑफन स्ट्रेनस, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव,
तो टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेनर्स को आप इकट्ठा करके 3-4 पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ पूल, इंप्रेशन मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉयज़, टाइम इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड होती है, हम रिक्रूटमेंट कितने लोगों की करते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं, आते कितने हैं, एंड देन सब्जेक्टिविटी, बायसेस, वो 7-8 बायसेस हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में हम पढ़ते हैं कि 10 इंप्रेशन मैनेजमेंट हो गया, हेलो एरर हो गया, सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया, और एक वो होता है ना कि हम फर्स्ट इंप्रेशन से ही जज कर लेते हैं, वो चीज़ें लिख सकते हैं। मेथड्स बाय विच वी कैन इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पे आप मेथड्स 2-3 लिख के ना, एक अगेन यहाँ वो बेस्ट प्रैक्टिस वाला डब्बा बन सकता है कि एनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो और लिखो कि दे यूज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, वीडियोग्राफी ऑफ इंटरव्यूज़, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी और टेस्ट ऑफ कंटेंट, वो सब यूज़ करते हैं, which due to which their turnover is less and recruitment is effective and objective। फिर बाकी methods आप recruitment को objective कैसे बना सकते हो, टेलर को यूज़ करो कि रिटर्न डाउन पॉलिसीज़ हों, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेक्शन करो, अलग अलग टेस्ट्स लो, अलग अलग स्टेजेस हो, जैसे अपने UPSC का भी आप इसमें हो ना बेस्ट प्रैक्टिस में लिख सकते हो। पहले प्री होगा, उसमें आप ऑब्जेक्टिव रहोगे, मेंस में आप सब्जेक्टिव आओगे प्लस ऑप्शनल दोगे, एंड देन यू विल गो फॉर एन इंटरव्यू वेयर इट विल बी हेडेड बाय 5 पैनल्स टू reduce the subjectivity। Then rapid industrialization in India is heavily dependent on industrial relations। Impact of globalization, impact of globalizations on industrial relations। 4-5 benefit, 4-5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, 4-5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन से कि लेबर को अपने राइट्स पता लग रहे हैं, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस हो रही हैं, रैंक एंड फाइल लीडरशिप हो रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आ जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे कि the bargaining power of labor has increased, which might sometimes spill over to strikes or industrial action, and the cost of labor has increased due to minimum wages laws, or the intervention of ILO has increased। वो सब लिख के आप इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना विद इन द गिवन टाइम फ्रेम आई कुड हैव शेयर्ड, आई हैव गिवन माई 100%। बाकी स्टिल यू मे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड यू मे हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड आई विल ट्राई कि अगर आप पेपर 1 की भी बना सकें या प्रीवियस ईयर्स में से पेपर 2 की किसी और ईयर की बना पाएँ। एंड आई विल ट्राई टू शेयर माई नोट्स एंड द एग्जाम्पल्स लाइक वी डिस्कस्ड, एंड वट एवर आई हैव विद मी विद यू ऑल पीपल। आई हैव स्टार्टेड अ टेलीग्राम ग्रुप रिसेंटली, तो whosoever has any concerns or wants to see those notes, please feel free to comment below or to join that telegram group, and please let me know अगर आगे आपको कुछ और help चाहिए तो। I hope this video has been of help to you। Thank you so much for watching this video। Thank you।